बेसिक इंटरनेट एंड सोशल मीडिया लिटरेसी सबको सीखनी चाहिए. Tweets I found my co-founder, my business partner. We ended up starting an AI startup together. Actually लोग अपने पैकेजेस देख के बहुत खुश होते हैं कि मेरा यार इतने लाख का इतने करोड़ का पैकेज लग गया. What they're not realizing is the company is telling you that this is the maximum you will make this year. Good morning and welcome to Designing Tomorrow with Ashutosh. Financial freedom is something that we are all chasing. कुछ लोग को मिल पाता है, कुछ लोग को नहीं मिल पाता. But one thing we don't understand is that financial freedom is not a jackpot. It's a garden. You have to give it water. You have to plant the seeds. And today I'm really happy to be in conversation with someone who has built a beautiful garden for himself and is helping a lot of other entrepreneurs, indie hackers, and people all around the globe achieve the same financial freedom. Today, I'm talking with Mr. Ayush Chaturvedi. Ayush, it's great to have you in conversation with us. Thanks for having me, Ashutosh. This is such a privilege. Such a like, big fan of your work. Right, we've known each other for a few years now, and yeah, very excited to be here and let's have some interesting conversation. Amazing. So, and I'll tell you what the point of this conversation is. The point of this conversation is Ayush was in a very well-paying corporate job. He left that to find some financial freedom for himself. He gave himself some time and he tried everything under the sun. At the end of this podcast, what I want to do is to give you a very clear playbook of how to launch, figure out, build and sell your own side hustle. And this is where Ayush will come in and help us out. So Ayush, एक बार हम ऐसे start करते हैं कि you were working in Samsung. Why did you feel the need to leave your job and go through all this rigmarole? Right. No, so I think I was like 10-11 years into the regular corporate grind, going from a software engineer, lead engineer, staff engineer, that climbing that ladder, right? And but over time I realized that my income or my whatever money I make is directly tied to the amount of effort that I put in, right? And sometimes I felt like I'm sure like every corporate employee feels that way this today, that even the effort that you're making, like you're not getting paid accordingly to what effort that you put in, right? So the problem फिर ये हो जाती है कि it was not about making more money, right? Because आप जैसे जैसे नौकरी में आगे बढ़ते हो, the more you work, the more it starts eating up your time, right? The higher and higher you go in the corporate ladder, it starts consuming your life, right? And your entire life becomes about that one little job, right? और आप सब कुछ उसके हिसाब से करते हो. अपने बच्चों का स्कूल उस हिसाब से कर रहे हो, आप अपना घर कहाँ रह रहे हो, आप वो हिसाब से डिसाइड करते हो, राइट? आप सब कुछ आप एक चीज के अराउंड रिवॉल्व करते हो, आपकी पूरी लाइफ उसके अराउंड हो जाती है, which is very sad, honestly, right? Because the company doesn't care about you, right? For the company, you are a resource. Like they let go of you the moment they feel कि यार मेरे को कोई अच्छा मिल रहा है या मेरे को कॉस्ट कटिंग करनी है, right? But आपने तो अपना पूरा जिंदगी उस कंपनी के लिए अलाइन कर दिया, right? And also more and more hours, right? So by as you get senior, right, I started doing like 8, 9 hours, 10 hours, 11 hours a day, right? And which leads to burnout. And एक बार जब कोविड हो गया, ऑफिस सबका घर में घुस गया, तो फिर वो 11 घंटे नहीं, फिर वो 24 घंटे है. लेकिन आप कॉन्स्टेंटली जब सो रहे हो रात को तो आप काम के बारे में सोच रहे हो, जब सुबह उठ रहे हो तो आप काम के बारे में सोच रहे हो, राइट? विच इज क्रेजी. तो आई रियलाइज कि यार ठीक है, मैं लाइक I'm climbing this corporate ladder, I'm making decent money, but honestly I don't need that much money, right? Like I think true financial freedom is realizing like you're enough, right? And then you can actually take so many steps after that, once you know कि मेरे को इतना नहीं चाहिए, मेरे इतने कम में काम चल जाएगा, right? So I realized that I don't need that much money, but there is no way that I can do this job for half the time for half the money. है ना, that job was taking 50-60 hours a week of my time. I wanted something कि यार मैं 20-25 घंटे काम करूँ, right? और मुझे भले तुम 50% of the salary दे दो, बट ऐसे जॉब होता नहीं है, राइट? देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि यार क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या कर सकते हैं, एंड देन आई स्टार्टेड लाइक स्टम्बल्ड अपॉन डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन, राइट? विद द इंटरनेट दीज डेज इट इज इन आवर फोन, लाइक इन आवर लाइव्स, लाइक वी लिटरली लिविंग ऑन द इंटरनेट नाउ. सही बात, सब कुछ. तो सब कुछ ही तो इंटरनेट पे है, तो लाइक व्हाई नॉट फिगर आउट हाउ टू मेक मनी ऑन द इंटरनेट. एंड तो हाँ, लाइक दैट्स लाइक 4-5 years ago this journey started.
eventually I've built like different, like 15, 20, 25 different projects, different businesses, different products, or whatever you want to call them. Or few have worked. Like you usually have like a 2-3% hit rate in business, right? तो बहुत सारे फेल हुए हैं, बहुत सारे ड्रॉप किए हैं. Eventually I'm in a place, I'll not call it like financial freedom, right? Because again, like it's a very loaded word. What I'll call is that I have leverage freedom, or I have more better leverage on my time. कि I can work at my own pace, at my own timelines, and make enough money to make a solid living. तो ठीक है, that's great. Now to put a pin on that and to just circle back around to what leverage actually means, मैं एक चीज़ में थोड़ा डीपर जाना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आर इन द सेम पोजीशन दैट यू जस्ट डिस्क्राइब. ठीक है कि आई एम फीलिंग कॉर्पोरेट बर्नआउट, या मुझे लग रहा है मैं बहुत मेहनत करके अपनी कंपनी को दे रहा हूँ, क्या मुझे उसका रिटर्न मिलेगा, और स्पेशली आज के ज़माने में तो मैं श्योर भी नहीं हूँ कि मेरा जॉब रहेगा भी या नहीं. हाँ, इट्स वेरी रिस्की राइट नाउ, राइट. तो अब उसमें मैंने इतना पढ़ा है कि लेवरेज यू नीड टू build leverage. What does it actually mean? होता क्या है? So leverage is a very basic concept in physics. I think science में हमने छठी सातवीं में पढ़ा होता है कि एक लीवर होता है, आप 1x एफर्ट डालो तो वहाँ से 5x फोर्स आती है, जनरेट होती है, राइट? और इसको अगर हम बाकी एरियाज ऑफ लाइफ में अप्लाई करें तो जब आप अपने जॉब में आप 1x एफर्ट डालते हो तो आपको 1x ही सैलरी मिलेगी. आपकी सैलरी कैप्ड है कि आप भाई एक्चुअली लोग अपने पैकेजेस देख के बहुत खुश होते हैं, राइट? कि मेरा यार इतने लाख का इतने करोड़ का पैकेज लग गया. व्हाट दे नॉट रियलाइजिंग इट, द कंपनी इज टेलिंग यू दैट दिस इज द मैक्सिमम यू विल मेक दिस ईयर. लाइक देयर इज नो वे यू आर गोना मेक मोर मनी देन दिस ईयर, राइट? इट्स स्टूपिड. कितना भी मेहनत कर लो तुम 80 घंटे में हफ्ते काम कर लो तो भी तुमको इतने पैसे मिल रहे हैं. I never thought of it that way. Like it's companies basically putting a cap on your income, because they also have like laws and all, like they have contracts and all where you're not allowed to make any money outside or do something else also, right? So that there you're leveraged. You're not leveraged at all, right? Where you work, you put in X amount of effort, you make X amount of money. But what happens in a business, and different types of business models, and with different types of leverage. Right, so जैसे running a service business or simple freelancing, right? Like simple freelancing can give you better ROI on your effort and time. कि आप X काम करो, आपको 1.5x 2x तक रेवेन्यू आप कमा सकते हो. आप फ्रीलांसिंग से फिर आगे बढ़ोगे, आप एजेंसी बिजनेस बना सकते हो जहाँ पे यू हायर अ टीम ऑफ मल्टीपल एम्प्लॉइज, एंड वहाँ से आप 1x एफर्ट में 3x तक आप कमा सकते हो. एंड अगेन इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि 3x आप पैसे कमा रहे हो, इट्स अबाउट कि आप काम 1x ही कर रहे हो. लाइक वो आपका अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट यू पुट इन कैन बी रिड्यूस्ड. लाइक माय होल थिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग मोर एंड मोर मनी, बट टू वर्क लेस एंड लेस, लाइक वर्क एज लेस एज यू कैन टू मेक द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट यू नीड टू मेक टू लिव द लाइफ यू वांट टू लिव. जैसे आई थिंक साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में वो बोलता है कि अपना कि व्हेन यू कैन वेक अप एंड डिसाइड कि तुम्हारा दिन कैसे तुम जियोगे. रियल वेल्थ इज इन an empty calendar, right? Or real wealth is having the freedom to work with who you want, when you want, and at what you want, right? अगर आपको इसी बात का कंट्रोल नहीं है कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो, किसके साथ काम कर रहे हो, और कितनी देर काम कर रहे हो, तो फिर आप फ्री नहीं हो. लाइक फिर आप सॉरी टू से आप किसी के स्लेव हो. Getting out of that was very important for me. I realized this, like this I did a lot of reflection and realization, and I realized कि यार ये चीज़ तो नहीं चलेगी. Like this is no way to live a life. और ये all of this was, अगर आप 300 साल पहले जाओ, all of this started with the industrial revolution, राइट? जब वो फैक्ट्री वर्कर वाला सिस्टम आ गया कि 8 घंटे की 3 शिफ्ट हो गई और लोग फैक्ट्रियों में कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं. उसके पहले ऐसे नहीं होता था. लाइक बिफोर 500 ईयर्स 600 ईयर्स अगो आप रेनेसांस इटली में और फ्रांस में आप जाओगे तो पेंटर पेंट करते थे, राइटर बुक लिखते थे, पोएट पोइट्री लिखते थे, और वो अपने हिसाब से करते थे. और फार्मर्स फार्म करते थे, बट वो अपने सीजन्स पे काम करते थे. वर्क शुड बी लाइक लाइफ इज सीजनल. वर्क शुड बी सीजनल, राइट? वर्क शुड नॉट बी कि एट इट 60 hours a week for 50 weeks a year. Like that is just burning out your life. And on top of that, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो एक और बात है, that's one point I also like to give is कि आज के जॉब्स अगर इतने स्पेशलाइज्ड हैं तो मान लो यूर गेटिंग अ 5 करोड़ a year का पैकेज मिल रहा है आपको, बट आप एक मोबाइल ऐप का स्पेसिफिक टाइप की मोबाइल ऐप का UI ही बनाते हो, तो फिर लेट्स से दैट कंपनी लेट्स गो ऑफ यू.
कहाँ जाओगे? किसके पास वो प्रिसाइज स्किल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? दिस वाज मी बाय द वे, राइट? तो मैं जो काम कर रहा था वो इतनी बड़ी कंपनी में इतना छोटा काम था कि मैं कहीं और भी जाता तो मेरे को समझाने में जैसे 10 मिनट लगते थे कि भाई मैं क्या करता हूँ. लाइक एवरीवन नोज द कंपनी, एवरीवन नोज कि ये प्रोडक्ट बनाती है, उसके अंदर इस तरह की एप्स होती हैं, बट उसके अंदर डीप जाके समझा पाना कि नहीं 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 ये काम करते, नहीं नहीं इसके लिए वो वाली टीम है, अच्छा इसके लिए वो वाली टीम है, हमारी टीम बस ये छोटी चीज करती है, राइट? तो इट ऑलमोस्ट फील लाइक देयर इज नो मीनिंग टू द वर्क दैट यू आर डूइंग. आई थिंक व्हाट गिव्स अस ऑल अ लॉट ऑफ sense of happiness or a sense of contentment is knowing that what we are doing has some impact, has some meaning. Right? Agar hum if our work doesn't mean anything, we are just like one small cog in a giant wheel, right? तो फिर कोई like we'll start feeling pointlessness, right? And we'll almost have an existential crisis in life, right? But even instead, if we have control and if we have purpose and if we have meaning, तो इवन वो व्हील अगर छोटा व्हील होगा लेकिन पूरा मेरा व्हील है, राइट? इट्स ऑलमोस्ट गोज बैक टू, अगर मैं टेलर हूँ तो मैं पूरी की पूरी शर्ट बनाना चाहता हूँ, राइट? मैं एक बटन नहीं बनाना चाहता कि मैं फैक्ट्री लाइन पे एक बटन बना के आगे बढ़ा रहा हूँ, राइट? कोई उसके कफ बना रहा है, कोई कॉलर बना रहा है, कोई बटन बना रहा है, तो दिन भर बैठ के बटन बनाऊंगा, मेरा क्या लाइफ है, राइट? मुझे अगर पूरा शर्ट बनाने का मौका मिलेगा तो मैं एटलीस्ट थोड़ा उसमें अपना क्राफ्ट दिखाऊंगा, थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाऊंगा, थोड़ा अपना लाइफ को वो करूंगा, स्ट्रॉन्ग करूंगा, एक मीनिंगफुल बनाऊंगा. Right. So this is what happened, and most people don't realize this, that their work is basically now reduced to being equivalent of a tailor who's just making small buttons every day. और फिर वो उसको ओनरशिप भी नहीं फील हो रही. कोई ओनरशिप. तो फिर सर्कलिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ लेवरेज, ठीक है? तो अब मैंने सोचा, अब जैसे जस्ट टू गिव पीपल द राइट पर्सपेक्टिव, आई एम एट द एजेंसी स्टेज ऑफ माई ओन जर्नी, ठीक है? Right now I'm working upwards of 60-70 hours a week. But I feel ownership of this. So मैं खुद से कर रहा हूँ, कोई मुझे पुश नहीं कर रहा है, मेरा ज़्यादा मन कर रहा है in fact, right? Because मुझे वो ownership है कि मेरा नाम है, मेरा वो है, and मैं जिस हिसाब से कर रहा हूँ. It becomes like a game, right? It doesn't feel like work anymore. Yes. Right? It doesn't feel कि यार ये मेरे को मेहनत करनी पड़ी, किसी और के बोलने पे मुझे करना पड़ रहा है, मैं तो काश मैं ऐसा. You stop waiting for the weekend, right? I think जो आजकल corporate life में वो चीज़ है ना कि you dread Mondays and you love Fridays or Saturdays. Like what I've over the last 4 years since quitting, right? I love Mondays. Right? I'm like यार मजा, and so every morning I'm excited to do my work, right? And तो वो sense of that comes with a sense of control and sense of meaning that we are talking about. Yeah, talking about leverage again. बिल्कुल, हाँ नहीं तो भाई coming to that, because if we want to give a lot of people the ability to access their own meaning, ठीक है, दैट इज़ वाई दिस कॉन्वर्सेशन इज हैपनिंग. तो फिर इसमें अगेन मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, आई एम फीलिंग बर्नट आउट, मुझे लगता है मेरे पास कुछ चीज़ों का स्किल सेट है, और मुझे लगता है कि बाकी जो होगा यार मैं सीख लूँगा. मुझे अभी अपना जॉब करना है, ठीक है, थोड़े टाइम तक आई वॉन्ट टू गेट मोर लेवरेज फ्रॉम माई लाइफ. How do you say I should start from there? I think everyone should build monetizable skills. राइट आज के ज़माने में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपका जॉब भी है, आई एम टेलिंग यू, आपका बहुत अच्छा जॉब होगा, राइट? बट अगर मार्केट डाउन हुआ तो उसकी वैल्यू नहीं होगी. अगर आपको इफ़ द कंपनी लेट गोज ऑफ यू, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड अनदर जॉब. मैं फियर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू वॉइस दिस कि पीपल नीड टू रियलाइज कि हैविंग वन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम इज़ नॉट आइडियल, राइट? यू नीड टू बिल्ड स्किल्स ऑन द side and then start something on the side that can make some money. We don't actually realize this, that when you work for a company, right, your company has, every large company, every decent sized company has multiple revenue streams, multiple product lines, right? No, in business, it is stupid to have only one client or only one customer, right? Then why in a job do we have like only one employer and only one source of income, right? तो कुछ भी करो साइड में, कुछ भी स्किल शुरू करो. आई एम बिग फैन ऑफ पीपल जो कुछ नहीं करते, रात को आके 1 घंटा ट्रेडिंग करते हैं या पढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते हैं. नॉट सेइंग कि तुम जाके उसमें जुआ खेलो, गैम्बल मत करो, बट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, यू अंडरस्टैंड द स्किल, यू बिल्ड इट एज अ स्किल, यू प्रैक्टिस इट, यू गेट बेटर एट इट. बहुत सारी मोनेटाइजेबल स्किल्स हैं. यू कैन लर्न AI these days, right? Like copywriting, SEO, marketing, product building, coding is one of the most powerful skills you can learn right now. No coding with AI, right? Becoming an AI expert, right? It'll take time. It'll take 5 months, 6 months, like 8 months, 12 months, maybe, like whatever. Give it that time, right?
right? Like, and figure out that one monetizable skill that you can go out there and you can actually make money off of outside of your primary employment. Right? So first thing people should start doing is figure out a skill, monetizable skill, and try to learn that as better as possible. Yes. And what is monetizable? Why do I keep saying monetizable? क्योंकि वो ऐसी स्किल है जिसके लिए मार्केट में ऑलरेडी लोग पैसा दे रहे हैं. Right? So video shooting, recording is a very good skill. Editing is a very good skill like this. Right? Again, copywriting, AI से products बनाना, AI से automations करना, like these are very good skills जो businesses will be willing to pay money to to get the job done. Right? ऐसी बहुत सारी skills होती हैं जो हम hobbies के लिए करते हैं जो पैसे नहीं बनाती, which is good. Like you should have hobbies in life, like that's a good thing. But it will not necessarily make money for you, and just know that when you get into that कि कौन सी skills हैं जो पैसे कमा रही हैं और मैं उसको कैसे सीख सकता हूँ. तो ठीक है, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया स्किल. जैसे सेम थिंग, माई जर्नी भी जैसे आप बोल रहे हो प्रिसाइजली वैसे स्टार्ट हुई थी. ऑल्दो आई वॉज रनिंग माई ओन थिंग, बट आई वॉज रनिंग अ मार्केटिंग एजेंसी. मुझे आई फेल्ट आई वॉज नॉट, मैं टैंजिबल रिजल्ट नहीं दिखा पा रहा था किसी क्लाइंट को, और फिर इनटैंजिबल रिजल्ट दिखाने में पैसे कैसा मिलेगा. सही बात है. तो विद दैट आई फेल्ट कि क्या करूं एंड मैं बहुत परेशान था कि व्हाट स्किल डू आई नीड टू बिल्ड जिससे मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि ये स्किल है, ये डिलीवरेबल है, देखो मैंने ये करा आपके लिए. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ChatGPT केम एंड आई वाज लाइक कि AI से कुछ बदलेगा, मुझे इसके बारे में सीखना है. बिल्कुल. एक नया इंजन आ रहा है वर्ल्ड में जो सब कंपनी के पास होगा. मैं मैकेनिक शॉप खोलना चाह रहा हूँ. दैट्स माई इनिशियल थॉट, मेरा ये था. एंड देन आई वाज लाइक कि मैं जैसे आप बोल रहे हो प्रिसाइजली, एट द एंड ऑफ द डे आई वुड कम, और फिर मैं यूट्यूब पे बस AI क्या होता है, मुझे कोडिंग नहीं आती थी, मुझे कुछ नहीं आता था. राइट? तो आई डिड नॉट, आई हैड अ टेक्निकल एजुकेशन बट कोडिंग उसका नहीं पार्ट था. अब वो करने के बाद मुझे फिर ये द फर्स्ट $500 I made in AI was writing prompts. I did not know how to code. तो मतलब जो to your point, it is like आप क्या करो, आप upwork.com, freelancer.com, Fiverr, ये तीनों प्लेटफॉर्म्स हैं. आप उसमें जाओ, आप देखो कि कौन से जॉब आपके स्किल सेट से जो एडजेसेंट जॉब्स हैं उसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा आ रही है. राइट? लेट्स से आई गो एंड आई फाइंड, और फिर वो सब आप एक जगह एक गूगल डॉक पे कहीं पे कॉपी कर लो. एंड देन यू कैन गो टू ChatGPT एंड आपने मान लो 550 जितने भी कर सकते हो आपने कर लिए. आप फिर ChatGPT पर जाके बोल रहे हो कि अब इसमें मुझे बताओ कि कॉन्क्रीट क्या क्या स्किल सीखने चाहिए सो दैट आई विल बी एबल टू डू दिस. राइट. हाँ, ये जॉब करने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए. तो फिर मान लो मेरे पास रोड मैप आ गया. देन व्हाट? आई एम लर्निंग दो स्किल्स. मान लो मेरे पास स्किल आ गए, अब मैं मोनेटाइज कैसे करूँ? नहीं, तो these platforms are great. Upwork, Fiverr, right, are very good for finding gigs. थोड़ा tedious होता है, थोड़ा effort लगता है, but I think बिना effort के तो कुछ होता ही नहीं है, तो करना तो पड़ेगा ही. Right, मेहनत तो करनी पड़ेगी. A lot of what you can do is just spread this in your existing network. Just tell your friends कि यार मैं ऐसा कर रहा हूँ, है ना, कि I just learned this. Maybe do like reach out to a few friends and do some free work for them. Right? I don't like advertise this a lot, and I don't promote saying कि do a lot of free work. I think हमको अपने मेहनत का equal पैसा मिलना चाहिए हमेशा. We should never do free work. But अगर आप एकदम brand new हो, zero हो, so you need social proof and credibility more than money right now. है ना? तो money is not a priority. Get some credibility. Do some free work for a few friends. Get them to give you testimonials. Get them to stand up for you, or say that you are good at this thing. Right? And proof, basically get some proof that you are actually the skill. And the best part about monetizable skill is कि भाई is that skill helping someone make more money? Right? Make more money, save money or save time. Right? Essentially all three of them combine to the same thing. और इसी के लिए लोग हायर करते हैं, businesses हायर करते हैं to either make money, save money or save time. तो आपकी कोई भी skill होगी, it has to do these three things. तो एनी स्किल दैट आई लुक फॉर, दैट आई लर्न, आई हैव टू सी कि उस स्किल से किसी बिजनेस को जो मेरा पोटेंशियल कस्टमर है, मुझे प्रैक्टिकली बैठ के सोचना है कि क्या ये उस बिजनेस को पैसा ज़्यादा कमवाएगा, क्या वो उनका टाइम बचाएगा, क्या वो उनका पैसा बचाएगा. ईदर ऑफ दीज थ्री थिंग्स अगर मैं कॉन्क्रीटली कर पा रहा हूँ, देन दैट मीन्स आई हैव अ वेरी गुड मोनेटाइजेबल स्किल जो मैं किसी भी बिजनेस को या किसी पोटेंशियल क्लाइंट को पिच कर सकता हूँ. ठीक है.
तो अब उसमें जो स्टार्टिंग जर्नी जैसे आपने बताई कि भैया ठीक है मैंने स्किल सीख लिया, अब उसके बाद व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू कि जो प्लेटफॉर्म्स फ्रीलांसिंग के I'll just give one example of this which is coming to my mind right now. I have a friend Prasanna. I think we're the common friend, we know him, right? He's a DevOps expert. Right, so he had the same journey. He had a job in a big company, then he quit, he started his own agency, he started freelancing, he started his own agency, and his skill is basically AWS optimization. Right, it is so niche, it is so specific, but uska pitch kya hota hai ki I have the knowledge and the skill कि मैं आपकी कंपनी का AWS बिल $10,000 कम कर सकता हूँ हर महीने. तो आप अब $10,000 अगर वो कम कर सकता है तो मैं उसको $1,000 दे दूंगा, राइट, खुशी खुशी. तो यू बेसिकली सेविंग देम मनी, और उसका जो आप सेव करोगे जितना डेल्टा होगा उसका थोड़ा आपको मिलेगा, राइट. तो यू नीड टू फिगर आउट कि वो क्या स्किल है जो आप लर्न कर सकते हो जो किसी बिजनेस को एग्जिस्टिंग वो करेगी, राइट. एंड देन यू हाउ डू स्टार्ट यूजिंग अप्लाइंग दैट, लाइक यू मेक मनी फ्रॉम इट इज you apply to these platforms, Upwork, Fiverr, right, sign up on these platforms, make your profiles, reach out to friends, right, get some social proof, get some credibility, get some results in. So what is social proof again? Social proof is other people saying that what you do is good, having results for customers or clients, to say that this guy knows, like Ashutosh knows what he does, and he has actually got me results. So like so the rest of society is saying that you're good, not you are not saying that I am good. You have to say I am good, but like people would trust you more if other people also said that. तो मैं सोशल प्रूफ कैसे दिखा सकता हूँ कि मैंने टेस्टिमोनियल कहीं से ले ली है और मैंने केस स्टडीज़ बना ली. हाँ, केस स्टडी में क्लाइंट ने मुझे बोल दिया वैसे करके, तो फिर मेरा काम ये है कि मैं नया मोनेटाइजेबल स्किल है, मुझे और क्लाइंट्स चाहिए. क्लाइंट्स कैसे आएंगे? और जब तक मान लो मेरे पास कोई क्लाइंट भी नहीं आया, मैंने अपने प्रोजेक्ट बना दिए. हाँ, फ्री डू योर ओन वर्क. मतलब कि मैंने अपने प्रोजेक्ट बनाए, एंड देन उस प्रोजेक्ट की केस स्टडी मेरे पास है कि ठीक है मैंने एक वॉइस चैटबॉट बना दिया, अब आपके लिए मैं वॉइस चैटबॉट बना सकता हूँ, ये देखो मैंने अपने लिए बना रखा है. उसकी मैंने या तो वीडियो बना दी, यूट्यूब पर डाल दी, और फिर जब भी मैं क्लाइंट को रीच आउट कर रहा हूँ मैंने वो लिंक कर दिया. दिस इज अ वीडियो ऑफ मी, मैं अपना ये बना रहा हूँ, राइट. ठीक है, मैंने मोनेटाइजेबल स्किल कर लिया और मैंने अपना सोशल प्रूफ इकट्ठा कर लिया. एंड सोशल प्रूफ जैसे यूजर टेस्टिमोनियल्स, मैंने जो प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, केस स्टडीज और खुद के प्रोजेक्ट्स, ठीक है. तो अब मैं कैसे ढूंढूं कि हाउ डू आई फाइंड people to sell it to, and how do I approach that thing? तो अगेन एक तो प्लेटफॉर्म्स हैं ही, फाइवर और अपवर्क जैसे, वहाँ पे प्रोफाइल्स बना के वहाँ पे डेली पिचेस, डेली गिग्स आएंगे. उन गिग्स पे जाके आपको अप्लाई करना होगा. एटलीस्ट अपवर्क में तो एप्लीकेशन सिस्टम होता है कि यू अप्लाई टू न्यू गिग्स दैट आर कमिंग, एंड देन यू स्टार्ट यूजिंग सोशल मीडिया. आई थिंक एट सम पॉइंट ऑल ऑफ अस रियलाइज दैट वी नीड टू हैव अ सोशल मीडिया ऑडियंस. इवन इफ यू डोंट वांट टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर, राइट, आपको नहीं चाहिए मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, शायद आपको चाहिए बट नहीं भी चाहिए, तो भी थोड़े तो होने चाहिए. थोड़ा आपका प्रेजेंस होना चाहिए. आई लाइक टू रीफ्रेम बिल्डिंग एन ऑडियंस टू हैविंग अ प्रेजेंस, क्योंकि आजकल कोई हायर भी करता है ना तो वो पहले एक बार देख लेता है कि अरे बंदे ने सोशल पे क्या किया हुआ है, इसका लिंक्डइन क्या है, इसका ट्विटर क्या है, इसका इंस्टाग्राम पे क्या है, राइट. ये लोग देख लेते हैं. तो एक प्रेजेंस अपनी होनी चाहिए कि हाँ यार हमारा प्रोफाइल है, प्रोफाइल में क्लीन सब कुछ लिखा हुआ है, उस पर हम थोड़ा थोड़ा रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं. एंड देन इफ यू यूज दैट प्रोफाइल टू एक्चुअली रीच आउट एंड डीएम पीपल, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कि यू कैन जस्ट टैप ऑन द बैक ऑफ एनीवन sitting here in India and across the world. आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो. लाइक ये आप 50 साल पहले नहीं, 25 साल पहले भी नहीं हो सकता था, राइट, लोगों के लिए. तो दिस इज इमेंस अपॉर्चुनिटी. तो this is how actually I got one of my first breaks, right, कि I reached out to a bunch of companies saying कि यार ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा प्रूफ है, मैंने ऐसे ऐसे काम किया है, और this is how I can help you, right. I just want I just want to be a consultant, not a full-time employee, right, and then this is how I can add value to you. I don't want, I'll do part-time work for part-time remuneration. Of course, like rejection, there's 100 out of 1 is actually works, but आपको as an individual एक ही चाहिए, right? So like that one worked for me, right? And I got that consulting gig जहाँ पे I was able to work. They only needed me for 20 hours a week. Right, and I was able to get that 50% of my salary, right. That was good for living expenses. मेरे को टेंशन नहीं थी उसके बाद कि मैं, and that is when I decided कि हाँ यार now I can quit my job, right, कि ठीक है अब मैं छोड़ सकता हूँ नौकरी और मैं ये पार्ट टाइम करूँगा, and then I'll figure out कि मुझे क्या करना है. तो बेसिकली व्हाट यू डिड वाज यू वर लाइक कि यार मैं बर्नआउट फील कर रहा हूँ, मुझे इतना लेवरेज नहीं मिल रहा है अपने जॉब से, मुझे कोई हाई लेवरेज चीज़ करनी है, बट
अब मैं इसे छोड़ूं कैसे, मेरा गोल्डन हैंडकफ वो पैसे का भी तो है। तो उसके बाद नहीं बोला कि ठीक है मेरे पास ये मोनेटाइजेबल स्किल है, मैं क्या करता हूँ रैंडमली, मतलब रैंडमली इन द सेंस ऑफ कि ये स्किल इन कंपनीज को हो सकता है, बट हमेशा याद रखो ये नंबर का गेम है। आप ऐसे मत करो कि मैंने 4 को भेज तो दिया, आपको जाए नहीं, आए नहीं, हाँ तो नहीं आएगा 100 को भेजो, क्या जा रहा है Exactly. आपको पैसे तो नहीं चार्ज कर रहा, वॉल्यूम है, राइट। तो आपने 100 को भेज दिया और उसके बाद एक ने बोल दिया कि हाँ आयुष आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग, like there are multiple round of interviews and conversations and discussions, क्योंकि that was all like other side of the world, right, like they were in the US, an Indian company, नहीं, that was in the US. That's great. So then you were like okay I need time to focus on figure out what I'm trying to build for myself, but उसमें अगर मुझे थोड़ा revenue भी incoming हो जाए तो perfect रहेगा. So you reached out to companies all across the globe, one of them responded to you and then मतलब multiple responded I am assuming, and then उसमें फिर ये you went through the process. एक company was kind enough to give me an offer. Then they gave you an offer and that way you have कि ठीक है अब मेरे पास एटलीस्ट मेरी सैलरी का 50% आ रहा है, बट दैट इज रेवेन्यू कमिंग इन. अब मैं अपनी चीज़ों पे फिगर आउट डीप डाउन कर सकता हूँ कि मुझे क्या बनाना है, मैं कैसे रेवेन्यू बनाऊँ. वो जर्नी क्या रहती है और उसमें सबसे मुश्किल क्या होता है? सबसे मुश्किल होता है आपका माइंडसेट, सबसे मुश्किल होता है आपका डर. आप यू नीड टू बी वेरी वेरी करेजियस टू से कि यार ये एज यू सेड गोल्डन हैंडकफ्स, राइट, या कांटों का ताज जैसे हिंदी में बोलते हैं कि यार ये मैंने पहन तो लिया है बट ये दर्द कर रहा है, अब मैं इसको उतारूँ कैसे, राइट. तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेंटल वर्क टू एक्सेप्ट कि यार जो सीढ़ी में 11 साल से चढ़ रहा था, जिस माउंटेन को मैं क्लाइंब कर रहा था और जिसके शायद अगले 10 साल में मैं टॉप पे पहुंच सकता हूँ, दिस इज द रॉन्ग माउंटेन दैट आई एम क्लाइंबिंग. आई नीड टू गेट डाउन एंड देन कम बैक एंड देन फाइंड अनदर माउंटेन टू क्लाइंब ऑन, राइट. दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंटरनल वर्क. And to accept and you know, and of course you need a supportive ecosystem, you need family, friends who understand this. My family was very supportive. My parents, my wife had a decent job at the time and she was like okay you do your thing, I'm here to take care, right. So that was beautiful. That gave me the confidence and कि यार I should do this, है ना. तो I had, yes, financial, again we're talking about money so much, like you should have saved up some money, you should have some runway, like don't jump into the blind, right. ऐसे कूद मत जाओ, किसी ने पॉडकास्ट पे बोल दिया और हम कूद गए, वो मत करना प्लीज, राइट. थोड़े पैसे बचा लो, थोड़ी सेविंग कर लो. आई हैड 2 years ऑफ रनवे, है ना. तो आपने इतना सेव कर रखा था कि भाई 2 years तक मेरा खर्चा चल जाएगा आराम से. 24 महीने मैं 0 इनकम पे भी सर्वाइव कर लूंगा. और इसके अलावा यू शुड हैव इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लो अगर आप, क्योंकि नौकरी से अटैच लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस होता है आजकल, है ना. सब कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं और जैसी नौकरी गई हेल्थ इंश्योरेंस भी गया. अगर आप बीमार पड़ गए, लाइक भगवान ना करे, बट अगर हो गया आपको कोई सीरियस बीमारी तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी. तो उसके लिए यू नीड टू शोर अप एंड बाय एज मच इंश्योरेंस एज यू कैन, सो दैट यू डोंट बिकम अ फाइनेंशियल बर्डन while into this crazy journey that you are embarking on. So these are very like practical और वैसे छोटी छोटी चीजें हैं, but I think people need to be aware. But एक larger mindset, जैसे whatever you are saying to me, larger mindset क्या है कि यार ये मैराथन है, एक बार में स्प्रिंट नहीं है. आप अगर एक बार में कि मैंने 4 लोग को अप्लाई कर दिया, ये कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं. द वे आयुष इज सेइंग इट, द वे ही सेट इट अप फॉर हिमसेल्फ कि मुझे मैराथन है. मैराथन में क्या है, मुझे जितने ज़्यादा मौके मिलेंगे ट्राई करने के, उतने मेरे चांस ऑफ सक्सेस बढ़ जाता है. तो आप जो भी अपने करंट सिचुएशन में कर सकते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले, आप अपना सेविंग्स करके रखो. और सेविंग्स करके आपको क्लियर होना चाहिए कि देखो मेरे पास इतने महीने का रनवे है, मैं इसमें ऐसे करूँगा. उसके बाद आपको पता है कि आपके पास एक मोनेटाइजेबल, क्लियरली मोनेटाइजेबल स्किल है जिसकी मार्केट में डिमांड है, इसीलिए हम वो प्लेटफॉर्म्स का बोल रहे हैं. उसके बाद हमारे पास मोनेटाइजेबल स्किल हो गया, ये हो गया. उसके बाद हमने छोटी छोटी चीज़ें कि लाइफ जो अनएक्सपेक्टेड कर्वबॉल्स जब थ्रो करती है उसके अगेंस्ट अगर मैं हेज कर लूँ अपने आप को, तो अगेन आई कैन बी इन द मार्केट. मान लो मैं AI का एक्सपर्ट बनना चाह रहा हूँ, तो मैं ये रहा है कि अगर मैं बाकी सब चीज़ें फिगर आउट कर लूँ कि मुझे इसकी ये सैलरी देनी है, इसका ये करना है, मैं ये रेवेन्यू मेरा आता रहे, तो आई कैन एसेंशियली बी इन द मार्केट फॉर एज लॉन्ग एज आई वांट टू. Yes, and that is the game. Yeah. That the game is to never quit. Is to never have to quit, right? Because the longer you stay in the market, the better your chances of getting successful become. It is to take as many shots as you can without
betting the whole house. सही बात. Right कि again वापस वही फंडा, it's a game of probability, right? कि आप कितने शॉट्स ले सकते हो. तो every shot should not be कि आप अपनी पूरा घर उस पे दाव पे लगा दो कि यार ये वाला बिजनेस तो चलेगा तो चल गया, नहीं चला तो हम रोड पे आ गए. वैसा कोई रिस्क वैसा लेना ही नहीं है बिल्कुल भी. अपने को जरूरत ही नहीं है वो ऐसा रिस्क लेने की. द होल गेम इज टू मिनिमाइज द डाउनसाइड एंड ऑप्टिमाइज द अपसाइड, है ना, नॉट मैक्सिमाइज द अपसाइड. कि मैं मैक्सिमम में कितना से कितना नहीं. तुम तो यार एक दिन में 1 करोड़ कमा सकते हो, बट वो करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, उसमें तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी. तो फिर क्या पॉइंट है. तो मिनिमाइज द डाउनसाइड एंड ऑप्टिमाइज द अपसाइड एज मच एज यू कैन. और फिर वो हेजिंग आई थिंक इज अ गुड वे टू पुट इट. एंड इफ यू अगेन वेरी गुड एग्जांपल इज स्टॉक मार्केट्स. जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, दे ऑलवेज हैव लाइक अ स्टॉप लॉस सिस्टम कि यार इस कीमत के नीचे मेरे को ये स्टॉक नहीं ओन करना है. आई एम गोइंग टू गिव अप एंड आई एम गोइंग टू बाइट माई लॉसेज एंड बी लाइक ओके आई विल सर्वाइव बट आई विल नॉट लूज मोर मनी ऑन दिस थिंग देन एनीथिंग. सो हैव योर ओन पर्सनल स्टॉप लॉस कि यार अगर मैं ये आइडिया ट्राई कर रहा हूँ, ये स्किल ट्राई कर रहा हूँ, ये चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, इतने महीने लगा दिए मैंने, इतने पैसे लगा दिए इसमें, अब ये नहीं हो रहा है ना, तो नहीं हो रहा है यार, मूव ऑन, कोई बात नहीं है. ऐसे 10 और चीजें हैं करने के लिए. मतलब कि ज्यादा अपनी आइडेंटिटी और अपने दिल को उससे अटैच नहीं करो. आइडेंटिटी तो कुछ है ही नहीं, छोटा जीरो कर दो आइडेंटिटी को. यू आर नोबडी. ऑनेस्टली 8 बिलियन लोगों की दुनिया है. यू आर नोबडी टू बी ऑफ एनीथिंग, है ना. लाइक योर ईगो, योर आइडेंटिटी इज ओनली गोइंग टू कम इन बिटवीन ऑफ व्हाट यू कैन अचीव इन लाइफ. हाँ, कोई काम छोटा नहीं है, राइट. आपके ईगो बोलेगा यार ये काम बहुत छोटा है. मैंने $10 में कॉपी राइटिंग करी है ना. मैंने लोगों के लिए ईमेल, सेल्स ईमेल लिखे हैं. $10 में 3 ईमेल लिख के दे दूंगा मैं आपको, है ना. क्योंकि उस वक्त मैं कॉपी राइटिंग वाली स्किल सीख रहा था. मुझे पता था कि दिस स्किल विल गिव मी मनी एंड दिस स्किल विल, एंड दिस इज अ ट्रांसफरेबल स्किल दैट विल अप्लाई टू एवरी बिजनेस दैट आई डू. तो आई हैव टू लर्न इट, राइट. आई लर्न इट एंड देन लाइक हाउ डू आई नो कि दिस इज एक्चुअली, आई एम एक्चुअली गुड. तो जब कोई पैसा देगा देन यू आर एक्चुअली गुड. अगर आपकी स्किल के लिए कोई दे रहा है पैसा तो just for the uninitiated, copywriting is writing things with a purpose, not just writing for the sake of it, writing to persuade the final user to do something, to take an action. अगर आपका कोर्स का मेरा पेज बना हुआ है तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि भाई मेरा कोर्स खरीदो, तो उसके लिए कॉपी राइटिंग काम आती है. एंड टू टेक योर एग्जाम्पल, वन ऑफ अ फ्रेंड्स, ही इज रैनार. हाँ, ऑफ कोर्स एक्चुअरियल उसमें है. ही हैज अ वेरी वेल पेइंग जॉब एंड लोग जानते हैं बैंगलोर में. हाँ, बैंगलोर में, राइट. एंड ही जस्ट रिसेंटली पुट आउट वो कि मैं $1 में 5 लोगों की कॉपी राइटिंग. बिल्कुल. सच ग्रेट इनिशिएटिव एंड सच अ ग्रेट आइडिया, राइट. तो और अगर आप अपना ईगो लगा लोगे ना कि यार मैं तो ना इतने करोड़ कमाता हूँ या इतने लाख कमाता हूँ महीने के, है ना, मैं ये छोटा ऐसे 500 रुपये का काम, 800 रुपये का काम क्यों करूँ, या $1 उसका लिटरली 80 रुपये का काम मैं क्यों करूँ. हाँ नहीं, 80 रुपये के लिए मैं क्यों अपनी मेहनत लगाऊँ. दैट इज नॉट लाइक, अपना ईगो को नहीं बीच में लाना है ना. इट इज़ नॉट अबाउट योर ईगो, अबाउट योर आइडेंटिटी. इट इज़ अबाउट डूइंग व्हाट इज नेसेसरी टू गेन द स्किल्स, टू गेन क्रेडिबिलिटी एंड टू मूव ऑन इन बिजनेस, राइट. तो वो करना जरूरी है. सो या अगेन बैक टू आइडेंटिटी. नो शुड नॉट हैव, नो आइडेंटिटी को जोड़ना ही नहीं किसी भी आइडिया को. अगर नहीं चल रहा है तो छोड़ के आगे बढ़ो. 100 और चीज़ें करने के लिए दुनिया में बहुत अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है. आप आराम से अपना बिजनेस बना सकते हो. समय और मेहनत तो लगेगी, उसका कोई इलाज नहीं है, बट अपनी आइडेंटिटी भी मत लगा दो उसके साथ. प्लेबुक में क्या है कि आप पहले मोनेटाइजेबल स्किल ढूंढिए. आप ये सोचिए कि ठीक है, अब इसको मैं कहाँ पे, आप मार्केट में जाइए, इन प्लेटफॉर्म्स पे जाइए, देखिए इसको किस फॉर्म में बेचा जा रहा है. उसके बाद आप जितना सोशल प्रूफ बना सकते हो, जितना अपना इकट्ठा कर सकते हो, प्रूफ ऑफ वर्क इकट्ठा करिए. आफ्टर दैट यू रीच आउट टू पीपल. अगर जिनको जो लिस्ट है जानते हो उनको जानो, जिसको नहीं जानते हो उनको कोल्ड DMs करो, इंस्टाग्राम पे करो, फेसबुक पे करो, जहाँ पे भी करना है आप करिए, ठीक है. उसके बाद वंस आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, हाउ डू आई मेक श्योर कि मैं इसका स्ट्रक्चर ढंग से कर रहा हूँ. हाउ डू आई मेक श्योर कि आई एम गेटिंग माई टाइम्स वर्थ ईदर थ्रू प्रोग्रेस और थ्रू द रेवेन्यू. नहीं बिल्कुल. तो हाँ, सो you'll work for a few clients, you'll do a few gigs,
you'll get better at the skill, you'll get some social proof, you'll get credibility, you gradually start raising your rates, right? Every client conversation is unique. Like आपको ऐसे पहले दिन से अपने rates से publish करने की जरूरत नहीं है, right? But what you do is that especially in DMs, if you're having like Upwork और Fiverr पे तो फिर भी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि it becomes a race to the bottom की जो सबसे सस्ता होता है लोग उसको हायर कर लेते हैं, तो वो भी करना पड़ सकता है इनिशियल डेज में. बट जब आप वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो देन यू कैन ग्रेजुअली स्टार्ट रेजिंग योर रेट्स एंड बी लाइक कि नहीं यार ये मेरा प्रूफ है, ये काम मैंने पहले कर रखा है तो इसके हिसाब से मुझे इतना मिलना चाहिए. एंड गुड क्लाइंट्स लाइक द क्लाइंट्स दैट यू वांट टू हैव वुड रियलाइज दैट, वुड सी दैट एंड वुड पे फॉर वैल्यू. Right, and gradually you'll start getting better and better leverage on this skill that you're building. Right, so again, so skills also become leveraged or get you leverage in that way. Basically, now that I've gotten to a point कि I'm very confident in my skills, and then the biggest difficulty जो a lot of people को होती है, एक ये फैक्टर समझने में कि भाई क्लाइंट को मना भी करा जाता है. आप मुझे पैसा देना चाह रहे हो, नहीं ले रहा आपका पैसा. क्यों? आपकी टाइमलाइन बहुत गंदी है. क्यों? आपको काम करना नहीं आता है. क्यों? आप स्कोप क्रीप आप मुझे एम्प्लॉय समझ रहे हो अपना, राइट? या मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, और ये गलती मैंने करी थी. आई वॉज लाइक कि यार मुझे पैसा दे रहा है ये, बताओ है, मैं तो मतलब मुझे तो इनकी पूजा करनी चाहिए. बट लाइक एंड देन आई हैव बीन बर्न्ड, एंड देन दैट्स व्हाट आई रियलाइज कि एक क्लाइंट और वो भी फिट होता है आपका, कि इफ़ दैट क्लाइंट इवन आपके प्रोडक्ट का भी क्लाइंट हो, अगर आप एक स्पिरिचुअलिटी का प्रोडक्ट बना रहे हो जिसका क्लाइंट उसको मानता ही नहीं है और फिर वो उसको रिजेक्ट कर दे रहा है, तो फिर आपको बुरा नहीं फील करना, यू डोंट नीड टू. बट ये मुझे एक इंसाइट कैसे मिलेगी? ये काम करने से और मार्केट को देखने से. हाँ, और क्या, right? काम करके ही पता चलेगा और समझ में आएगा. एंड यू वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि बाकी प्लेयर्स कौन है मार्केट में, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और वो कैसे चार्ज करते हैं, राइट? और देन यू स्टार्ट कमिंग बैक टू सेइंग नो. राइट, आई थिंक सेइंग नो इज समथिंग हमको ना बचपन से बड़ा किया जाता है कि हाँ वी आर ट्रेन्ड लिटरली टू बिकम येस मैन. राइट, कि हम हर बात में हाँ ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, हाँ हो जाएगा, हाँ ठीक है. हमारे कॉर्पोरेट में तो इतना ज़्यादा होता था ये, किसी भी कंपनी में जाओ, इंडिया के आईटी कंपनी में, टेक कंपनी में, फॉरेन क्लाइंट होते हैं और क्लाइंट कुछ भी बोल देता है और मैनेजर बोलता है येस सर वी विल डू इट. और फिर मैनेजर आके नीचे इंजीनियर की मारता है कि यार तुझे तो करना पड़ेगा, मैंने तो क्लाइंट को बोल दिया. है ना, विच इज सो stupid, right? So you have to stand up, you have to have a spine, right? You need to understand ki this is what I can do, this is what I cannot do, and this is when like this guy is taking me for a ride, है ना, कि he's extracting more value out of me than he's paying me, or he's taking me for granted, कि यार मेरे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है. This is the power you have in terms of having a job versus freelancing. You have more freedom. कि यार you don't like someone, you fire that client. You can fire the client. और मैंने I have done it, like when I was freelancing and initially in my agency days, I was like यार ये नहीं हो रहा ना मेरे से, तो ये मेरे को नहीं जम रहा बंदा, मेरे को नहीं काम करना इसके साथ, मेरे को 100 और मिल जाएंगे, है ना. तो मैं इसको मना कर देता हूँ कि मैं politely you say no to them. You don't have to be rude to them. You don't have to burn bridges with anyone. बिल्कुल. Like आप क्यों नेगेटिविटी फैलाना चाहते हो? आप बस politely वो करो कि मैं नहीं कर सकता. This is not my cup of tea. Hope you can find someone else, right? Who would be willing to do it, and just politely say no and move on. तो मतलब जस्ट एक थोड़ी सी स्टोरी शेयर करूँगा. व्हेन यू से अबाउट सेइंग नो, बेसिकली आई गॉट दिस, देयर वाज दिस auditors की firm that was like this vote, and they were having a really huge conference, and they're like कि Ashutosh, all the top ones are coming here and we are giving you a booth for free. तो and कि इसका लोग इतना पे करते हैं, तो you're in AI ना, ऐसा करो 15 दिन है, रोबोट बना दो. मैं रोबोट कैसे बना दूंगा, मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ AI का. कह रहे अरे AI रोबोट एक ही चीज़ है, हम तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं. मैंने उसको टेक्स्ट करा कि मैम आई एम सॉरी, मेरे अभी इतना स्किल नहीं हुआ है,
और I think एक meta skill, I think what everyone should learn and probably read some psychology and philosophy around it is to read people and to understand people and to read the room कि आप किस जगह में किस context में किससे बात कर रहे हो, और and read people कि यार सामने वाला आपसे जो बात कर रहा है वो किस लहजे में बात कर रहा है, किस टोन में बात कर रहा है, the way he is talking to you. अगर कोई ऐसा कह रहा है ना कि देखो हम तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, तो नहीं भाई, किसी का एहसान नहीं लेना है ना, कोई जरूरत नहीं किसी का एहसान, तुम कर ही रहे हो ऐसा कुछ फ्रीडम के लिए, तो तुम एहसान लेके क्या बात का फ्रीडम लोगे? तुमको कोई जरूरत नहीं है किसी को भी अपने ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर बनाने देने की. यू आर योर ओन इंडिविजुअल, यू आर योर ओन एंटिटी, है ना. तुमको यू डोंट हैव टू फील कि यार दिस गाय इज डूइंग मी अ फेवर, तो मैं इसमें नहीं ना इसके लिए फ्री में काम कर देता हूँ, या मैं इसके लिए ना ऐसे कर देता हूँ. नहीं. अगर कोई जता रहा है ना कि वो फेवर कर रहा है, वो बहुत गलत है. कोई फेवर कर भी देता है, फेवर होते हैं, लोग करते हैं, करना चाहिए, अच्छी बात, तुम भी कभी कर पाओगे तो करोगे बिल्कुल. बट कोई अगर जताने लगे वो चीज, वो दैट इज व्हेन ही इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू, एंड दैट इज व्हेन यू नो दिस इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू वर्क विद एवर. So don't work with that person. The person, if you, and ऐसा भी मत बोलो कि मैं अच्छा अभी कर लेता हूँ, बाद में किसी और के बाद में इसको मना कर दूंगा. नहीं. If you cannot work with someone for the rest of your life, don't work with them for one day also. अगर तुमको जिसके साथ भी काम, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, राइट, आई नो वी आर गुड फ्रेंड्स, आई नो, एंड वी मेट ओनली प्रोफेशनली, वी ओनली मेट ऑनलाइन, हम पैसे बचपन से नहीं जानते थे एक दूसरे को, राइट. आई वुड नॉट बी हियर विद यू इफ आई डिड नॉट थिंक कि हम लॉन्ग टर्म में हमारी अच्छी रिलेशनशिप हो सकती है, राइट. काम को लेके, पर्सनली, किसी भी तरह से. इनफ लोग हैं दुनिया में, करोड़ों लोगों की दुनिया है. अगर कोई नहीं जम रहा है ना, तो मना कर दो उसको, आगे बढ़ो, यू विल फाइंड समवन एल्स. जब जैसे आपने बोला है, एंड ये बहुत ज़रूरी होता है, मैं ऑनेस्टली इस गलती को मैंने बहुत बार कर रखा है, बिकॉज यू फील कि यार मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, बस थोड़ा सा पैसा मिल जाए, बस ये हो जाए, तो फिर हाँ ये सही हो जाएगा, मैं इससे बोल दूंगा कि बाद में ये रिलेशनशिप बेटर हो जाएगी. नहीं होती. People don't change. You think that you can change people, you can't change people. People are who they are. Like, they have to internally realize and fail and have to do a lot of internal work to change. That will take a long time. You don't have that kind of time. You can't expect people to change later on. So basically, एक core सर्विस बिजनेस या एक कोर प्रोडक्ट बिजनेस को चलाने के लिए, इफ़ आई वर टू आस्क यू कि क्या बेसिक स्किल्स होने चाहिए जो सबको डेवलप करने चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ कि किस इंडस्ट्री में आप कॉपी राइटिंग बेच रहे हो, आप AI सर्विसेज बेच रहे हो, डेवलपमेंट बेच रहे हो, व्हाट वुड यू से कि यार ये तो सबको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आना चाहिए? तो यार मेटा स्किल होनी चाहिए, साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग योर ओन साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग कि व्हेन डू यू वर्क बेस्ट, and when do you not do work, what kind of people, what kind of work, what kind of projects are you good at, and what things are you not good at, right. एक वो मेटा स्किल है, पर्सनल साइकोलॉजी और पर्सनल नोइंग योरसेल्फ, कि पहले अपने आप को जानो, तुम्हारे क्या लिमिटेशन है, तुम्हें किस टाइप के लोग के साथ काम करना है, तुम्हारे क्या लिमिटेशन है, तुम्हारे क्या स्ट्रेंथ्स हैं, एंड डबल डाउन ऑन योर स्ट्रेंथ. डोंट वरी अबाउट हाइडिंग योर लिमिटेशंस और इम्प्रूविंग योर लिमिटेशंस. आज की दुनिया में लिमिटेशन बेटर करना इज नॉट एज पावरफुल एज डबलिंग डाउन ऑन योर स्ट्रेंथ, कि यार ये वाली चीज मैं बहुत अच्छी करता हूँ, मैं इसको और अच्छा कर लेता हूँ. जो कमियां हैं उसके लिए यू कैन हायर लेटर ऑन, you can partner up, you can find people to make up for those limitations. But ठीक है, तो first is knowing thyself. Second is having, of course, अगर technical skills में जाएं तो AI सबको आना चाहिए, coding, थोड़ी basic level of coding आनी चाहिए, और कोई बहुत आसान होता है, like YouTube पे जाके you can learn fundamentals of coding, like how it works. Even if you don't have to work, even if you don't have to code, ऐसे बहुत फंडो ऐप नहीं बनानी आपको, but थोड़ा basic coding तो कर लो, AI के साथ ही coding कर लो, AI से ही करवाओ, AI से ही करवा, बट तुम्हें समझना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है. हाँ, कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इज ईटिंग द वर्ल्ड लिटरली, लाइक सॉफ्टवेयर इज चेंजिंग द वर्ल्ड, एंड नाउ AI इज ईटिंग अप सॉफ्टवेयर, राइट. तो अगर आप इस चीज में नहीं हो तो आप नहीं कर पाओगे. तो सो या AI है, कोडिंग है, जनरल कंटेंट क्रिएशन ऑन सम प्लेटफॉर्म, right, ki if you're comfortable with the camera, then do video. If you're comfortable with the mic, then do a podcast. If you're comfortable with writing, then try LinkedIn, Twitter, start a newsletter, right, start a blog, some sort of place where you go and showcase your expertise, क्योंकि दुनिया is on the internet, is on social media. Best way to best way to get attention is to show what you're good at, and to show what you're good at, you need to understand these skills of the internet that are तो basic internet and social media literacy
सबको सीखनी चाहिए। Yes. क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हो, आप ये देखिए फ्रॉम स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस टू टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस, एवरीबडी इज पुटिंग आउट कंटेंट, एवरीवन इज डूइंग दैट, राइट? तो अब अंडरस्टैंडिंग पीपल, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, मतलब बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है। सेकंड, AI लिटरेसी। और AI लिटरेसी क्यों बोलते हैं लोग? बिकॉज उस चीज़ से आपको, मान लो मुझे फोटोशॉप करना नहीं आता, बट मुझे पता है कि AI के कौन से मॉडल से मैं बोल दूंगा भाई मेरी फोटो पे टोपी लगा दे मुझे वाली, वो लगा देगा, सही बात है। एंड तो फिर मुझे वो स्किल नहीं सीखना पड़ रहा, मुझे वो टाइम नहीं एक्सपेंड करना पड़ रहा, राइट? तो AI is an employee. Like, understand how you can use AI as an employee. yes, and it's best used as an employee, not as a even मतलब people use Not it as a like master. Like, yes. Don't ask ChatGPT like how can I make so much money in one day, right? Instead, like figure it out and then use AI to augment your work. तो आपने AI सीख लिया, आपने सोशल मीडिया लिटरेसी सीख लिया, एंड बिकॉज बट द होल कोर जो कॉन्सेप्ट है कि भाई जो भी चीज़ आप बेचना चाह रहे हो, वट एवर इट इज़ दैट यू वांट टू गेट मनी फ्रॉम, लोगों को पता तो होना चाहिए कि वो हो रहा है. Like how I found you is because you tweeted. Yeah, I'm chronically on Twitter. I think it's very sad, but it's true that I'm more on Twitter than I should be. Yeah. And I think but I find interesting people like you. Exactly. And so उससे क्या हो गया? Because now since Ayush has himself कि उनके पास वो freedom है that he can choose the people he wants to associate with, चाहे professionally हो या personally, ठीक है? तो और वो सबके पास नहीं होता, राइट? और उसी के लिए हम ये पूरी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. बट तो अब जैसे आयुष ने डिसाइड कर लिया कि मुझे ऐसे लोग के साथ काम करना है, आई लव बिल्डिंग थिंग्स, मुझे ऐसे लोग के साथ काम करना है जो खुद का बिल्ड कर रहा है, और वो एनर्जी बड़ी इन्फेक्शस होती है. तो आयुष ने एक ट्वीट करा कि मैं एक मीटअप कर रहा हूँ और ऐसे फाउंडर्स के साथ जो भी इंटरेस्टेड है मुझे बता दो. उस टाइम पे मैं अपने इसके फेज में ऐसा था कि मतलब कि आई हैव डन ऑल द वर्क, बट क्या करूँ? आई वॉज वेरी कन्फ्यूज एंड आई सॉ हिज ट्वीट एंड आई सेड I want to go there. And it's the same thing कि you find your tribe. आपने अपनी ट्राइब ढूंढ ली, बिकॉज अगेन ये जर्नी एक मैराथन है. तो मैराथन में बहुत डिप्स आते हैं. देर आर पीरियड्स यू फील कि यार इंडिया को आशुतोष उपाध्याय जैसा आदमी मिला नहीं अभी तक, एंड देर आर पीरियड्स यू थिंक कि मुझसे कोई बात कैसे कर लेता है. और वो समटाइम्स दोस पीरियड्स 2 दिन में हो जाता है, बैक टू बैक, है ना? तो वो फील करने के बाद, एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू फाइंड योर ट्राइब कि डोंट गो ऑन दिस जर्नी अलोन. You can't do this alone. Honestly, like you'll burn out, you'll give up, and you'll hate yourself for it. You probably go into depression or some sort of psychological issues if you try to do all of it alone. अकेले तो नहीं होना, राइट? मैं तो एक स्टेप और आगे जाता हूँ कि मैं तो को फाउंडर और बिजनेस पार्टनर बना लेता हूँ. मेरी सबसे लाइक द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई हैव हैड सिंस क्विटिंग माई जॉब इन द लास्ट 4 years, राइट? कि पहले मैंने जो जॉब छोड़ी थी तो कि मैं सब अकेला करूँगा, मुझे आई डोंट लाइक पीपल, राइट? आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट आई हेट पीपल. आई एम एन इंट्रोवर्ट इन जनरल, तो आई डोंट एंजॉय पीपल. बट व्हाट आई रियलाइज इज दैट आई डोंट लाइक bad people or average people or like there are certain kind of people which I really like, है ना? तो I figured that out, and then I began, okay, you said like tweet से आप you came to my retreat. Tweet से I found my co-founder, right? My business partner. We ended up starting an AI startup together. Right? He is in Chennai, right? Deep south. I am here in NCR in the north, right? He's a Tamil speaker. I am a Hindi speaker, right? But we connected together because we had complementary skills. We met each other on Twitter. We had a few calls. Ended up starting a business together. Right? We have a team now. Right? A 6-person team. Right? Bootstrapped. And we are profitable, doing all right for ourselves, and so we have a इस मॉडल पे मैं घुसूंगा अभी, क्योंकि मुझे ये बहुत ब्रिलियंट लगा है. एंड मैं इसीलिए तो अब जैसे सिंस हमने अभी तक जो बात करी है कि ठीक है आप एक चीज़ को सर्विस की तरह कैसे आप बेच रहे हो किसी स्किल को, ठीक है. देन कम्स ऑन कि अगर मैं फिर इस क्वेश्चन पे आया कि यार मुझे और भी लेवरेज चाहिए, क्योंकि अभी भी मैं अपना टाइम पैसे के लिए बेच रहा हूँ, चाहे मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं उसके लिए, बट मैं टाइम तो पैसे के लिए बेच रहा हूँ. उससे क्या बेटर मॉडल हो सकते हैं? Nothing scales like software, right? तो उससे वही when you're saying nothing scales like software, and that is what I read from you की. And तो फिर then I just want to explore कि जैसे, and it's like software या digital product. It's not as if कि everybody's skill becomes a software. अगर मैं एक digital product like Sai Teja,
he's building a community of people, and uska he's selling Hustle Club, join hustleclub.com. It's just started. Very, very good. Very promising. And so what he's doing is he's into mindfulness and all these related activities and mental health. So basically he made a paid community of people who are more interested, and then they can sort of participate in these things together. So अब तो higher leverage की चीजों में it's like info products, digital products, code and media. Code and media. Two things, right? I think Naval Ravikant, I'm a big fan of him, and he said that code and media are modern forms of leverage, right? So traditional forms of leverage were labor and capital. Capital is basically आपके पास पैसा है तो आप पैसा डाल के और पैसा कमा सकते हो. अगर labor means कि आपके पास employees हैं, दूसरे इंसान हैं जिनसे आप काम करवा के कोई काम करवा सकते हो, और आप traditional businesses में is a combination of labor and capital if you see. But modern businesses is code and media. And both of them, code and media, are by default on the internet, and they scale infinitely. So leverage, like labor and capital, only scale to a certain level, right? कि आप कितना ही पैसा लगा लोगे और आप कितने ही लोगों को हायर कर लोगे. But अगर मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया, एक सॉफ्टवेयर बना दिया जो actually has achieved, which has product market fit, which is actually solving a real problem for people, then that software, the same copy, like the software can be copied millions of times and can be used by millions of users, each of them paying you a significant amount. तो मेरे एंड से मुझे बस एक बार मेहनत करनी है, मैंने फिगर आउट कर लिया कि भाई यूजर की प्रॉब्लम क्या है. हाँ, करेक्ट. ठीक है. एंड देन आई वाज लाइक कि ठीक है, अब इसका मैं एक बार मैं कोड कर सकता हूँ, दैट इज वन ऑफ माई स्किल सेट. तो मैंने खुद बना दिया. मैं नहीं कर सकता, मैंने किसी को हायर कर लिया, मैं किसी पार्टनर को ढूंढ लिया. 3 ऑप्शन है मेरे पास, राइट? तो फिर मैं पार्टनर कैसे ढूंढूंगा? मैं डालता रहूंगा कि भाई मैं ये करता रहता हूँ, लोग मुझे जानेंगे. मैंने उसको रीच आउट करा, ठीक है, मेरा कोड बन गया. उसके बाद मैंने बस एक बार मेहनत करी उसके लिए, या एक बार पैसा दिया, ठीक है. एंड देन आई कैन बी लाइक कि ठीक है, अब मैं ये सॉफ्टवेयर हर एडिटर को या हर उसको बेच सकता हूँ, और वो मुझे उसमें फिर और मेहनत नहीं करनी, मतलब वापस कोड नहीं करनी. Like software is never over these days, as they say. Like SaaS is never finished. Software is on the cloud, तो आप continuously updates करते हो, bug fixes करते हो, नए features डालते हो, right? But जो उसका leverage point है वो बहुत बहुत अच्छा होता है. वो जो ग्राफ बनता है of putting in X amount of effort versus getting 5x, 6x, 7x ROI out of it. So we spoke कि job में X का X मिलता है या 0.5x मिलता है, फ्रीलांसिंग में X का 1.5x मिल जाएगा, एजेंसी में X का 2x 3x मिल जाएगा. बट SaaS में इफ यू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोडक्ट, वो आपको X का 5x 6x 7x भी दे सकता है. So that, but and also like figuring out that product takes a while. It's a lot of iterations. Finding customers for it it takes a while. That is, so it is nowhere easy. Right? कुछ भी आसान नहीं लाइफ में. Anything worth doing is not easy. Okay, let's be very clear on that. कि हम कोई भी ये नहीं बोल रहे कि ये बहुत आसान है करना, बट हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप ये चीज एफर्ट करोगे तो यू कैन फिगर इट आउट इफ यू आर अ रीजनेबली स्मार्ट पर्सन, राइट, एंड यू गो बाय these playbooks or these frameworks, right, then you will eventually be able to figure out a way जहाँ पे you can leverage your income, leverage your effort and get a lot more money out of the work that you do. तो अब जैसे SaaS होता है, तो SaaS इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है. तो उसके 2 मॉडल हैं. या तो मैं हर महीने आपसे $5 या एक सर्टन अमाउंट ले रहा हूँ कि भाई आप मेरा सॉफ्टवेयर यूज़ करते रहो. कैनवा है, आप उसे यूज़ कर रहे हो, मैं ₹500 हर महीने दे रहा हूँ कैनवा वालों को. तो उनको पता है अगर उनके 1000 यूज़र हैं तो 1000 × 500 उनका हर महीने उनके अकाउंट में आ रहा है. वो अपने अपडेट्स कर रहे हैं, उसी पैसे से सर्टन वो करके वैसे करें. दूसरा क्या है, मैंने एक कोड लेवरेज, दैट इज कोड लेवरेज. दूसरा मैं उस कोड लेवरेज को दूसरे फॉर्म में भी क्या कर सकता हूँ कि मैंने लाइफ टाइम डील दे दी. मैंने ऐसे कि 1 टाइम सेल होगी कि भाई एक बार आप मुझे $100 दे दो, आप रखो. अब मैं दूसरे कस्टमर को ढूंढूंगा, एक बार में $100 दे दे, राइट. एंड सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बिजनेस इज अभी बहुत अट्रैक्टिव है बिकॉज ऑफ दिस मॉडल कि इफ यू गेट इट वर्किंग देन बहुत ही बढ़िया रहता है. देन यू कैन जस्ट फोकस ऑन होनिंग इट. जैसे अभी मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो फॉर एवरी न्यू क्लाइंट आई हैव टू कंप्लीटली स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, देन बिल्ड द होल थिंग, देन वो इटरेट और अपॉन इट. इसमें क्या है, अगर मैंने एक चीज़ बना के वो मेरी चल गई, उसमें मुझे पता कि यार इसमें 4 ही तो गलतियाँ हैं, अब मेरी सारी मेहनत इन 4 गलतियों को करने में सही करनी है. एंड देन दैट इज वो. Now and then coming to the second form of leverage for people who can't code or are not interested in this domain, media. What does that mean? So media is content, basically written audio, video, any form of content, and it scales differently. It doesn't scale directly in terms of the money that you make, but it scales in terms of the influence that you can create. Right? If you have a great podcast, then
a lot of you get to network with a lot of interesting people, and you get to build up your influence through them, and through them you get access to information, to opportunities that you would never not get access to. So that's why everyone should be producing some form of media every day, right? On some platform, written media, audio media, video media. Eventually, if you build up in a big enough of an audience, some people do the brand sponsorships model, right? कि podcast में ads अच्छे चलते हैं, या YouTube पे if you can see like people make a lot of money via AdSense or podcast sponsorships, and newsletter, like I write a newsletter, like a small newsletter, और उसमें newsletter होता क्या? Newsletter is basically you send like a weekly or bi-weekly, or like I send it twice a week, an email to people who are subscribed to, who have given you their email address, right? Who want to read from you. So I send out my newsletter twice a week, and then I have like small ads within. So I basically written content. Either वो business ideas होते हैं, या deep dive case studies होती हैं दूसरे business की, और उनके बीच में से छोटे छोटे 1-2 ads होते हैं companies के लिए. Companies pay me for placing those ads in my newsletter. तो बेसिकली अगेन गोइंग बैक टू द प्लेबुक, व्हाट यू डन इज कि यू लाइक कि ठीक है मुझे सर्विस वाला नहीं करना, तो अब मैं इन अ नॉन सर्विस वे व्हेन वी वांट टू सेल ईदर कोड और मीडिया, द प्लेबुक देयर इज यू फर्स्ट डिसाइड योर ऑडियंस और यू फिगर इट आउट काम करते करते. इटरेशन से तुम पहले देखते हो कि जैसे यू डिसाइडेड कि ठीक है आई एम एन इंडी हैकर, आई लाइक अ लॉट ऑफ सोलोप्रेन्योर्स या इंडी हैकर्स या ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स हैं. हाँ, इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर, हाँ बेसिकली इंडिपेंडेंट इन शॉर्ट. ठीक है, तो यू दैट वाज एन ऑडियंस दैट यू फील यू हैड. ठीक है, उसमें आपको ट्रैक्शन कहीं दिखा, राइट? एंड देन यू वर लाइक कि इनके लिए इनकी प्रॉब्लम क्या होती है, इनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैं क्या करता हूँ, मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस का केस स्टडी या उसको डीप डाइव कर लेता हूँ उन पे, एंड एनीबडी लाइक आई वुड लव टू रीड दैट, सो दैट मुझे पता चलता रहता है अच्छा इसने एसईओ से ग्रो कर लिया, इसने ऐसे ग्रो कर लिया. सो देन वंस यू आइडेंटिफाइड योर पेन पॉइंट ऑफ योर ICP, जिसे मार्केटिंग में आइडियल कस्टमर और आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल बोलते हैं, तो आपने उसका पहले पेन पॉइंट ढूंढा, उसके हिसाब से आपने या तो कुछ कोड बनाया या मीडिया बनाया, एंड देन यू पुट इट आउट देयर, एंड यू पुट इट आउट देयर विद अ कंसिस्टेंसी एंड अ क्वालिटी. और उसमें फिर आप देखते हो क्या रिएक्शन आता है, आ रहा है नहीं आ रहा. मेरी पॉडकास्ट के साथ यही चल रहा है, राइट? कि आप दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. अभी मुझे पता नहीं कि मेरी प्रिसाइज ऑडियंस क्या है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट हाई क्वालिटी कंटेंट आउट देयर, और उसमें फिर जो डिस्कवर करेगा, वंस दैट इज डिस्कवर्ड, तो न्यूज़लेटर में यू डिसाइडेड कि ठीक है मैं हफ्ते में 2 बार लोगों को भेजा करूंगा, और उसको भेजने के लिए लोग मुझे अपना ईमेल देंगे. ईमेल देना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? हाँ, यू ओन योर ऑडियंस, राइट? लाइक अदरवाइज व्हाट डज दैट मीन? तो अभी आप सोशल मीडिया पे जो भी देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, या कहीं और भी, इट इज़ ऑल रेंटेड ऑडियंस. कि आपको है कहने को मिलियन फॉलोअर्स हैं, या जैसे ट्विटर पे कुछ 10,000 फॉलोअर हैं, या लिंक्डइन पे आपके 1 लाख फॉलोअर हैं, तो बट लाइक the algorithm is so dynamic कि आपके फॉलोअर जो है वो भी आपका कंटेंट नहीं देखेंगे, उन तक पहुंच ही नहीं पाएगा. दूसरा ये है प्लेटफॉर्म रिस्क, कि किसी भी दिन लिंक्डइन का या इंस्टाग्राम का मन किया कि यार ये बंदा मुझे नहीं अच्छा लगता, या इसमें कोई पॉलिसी हो रही है, गलत पॉलिसी वायलेट हो रही है हमारी, तो वो आपका अकाउंट रिमूव कर देंगे, एंड सडनली आप ऐसे मिलियन से 0 पे आ जाओगे विदाउट एनी बैकअप. जैसे Meta does not even have a active customer care. So there were certain agencies that I was working with, वो महीने का 40 लाख का Facebook ad चलाते थे, एंड उनका अकाउंट बंद हो गया. एंड ऑल दे कुड डू इज फेसबुक को एक ईमेल भेज सकते हैं. आप सोचो आपका बिजनेस का इतना क्रिटिकल चीज बंद हो गया, एंड दैट इज व्हाट यू मेंट बाय प्लेटफॉर्म रिस्क, राइट? प्लेटफॉर्म रिस्क बहुत हाई होती है आज. ऑल ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स आर लाइक अपने रूल्स पे चलते हैं, और रैंडमली कभी भी लोगों के ऑडियंस चली जाती है, अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं. बहुत रिस्क है. यू कैन गेट सम बैक, लाइक कुछ लोगों के आ भी जाते हैं वापस, बट इट इज ऑलवेज टू हैव ओन योर ऑडियंस. सो एन ईमेल इज लाइक द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट, और हर किसी का ईमेल एड्रेस होता है जो हर कोई रोज देखता है एटलीस्ट 1 बार. कई लोग दिन में 100 बार देखते हैं, कई लोग उसको रिफ्रेश करते रहते हैं. ईमेल इज अ एडिक्शन ऑफ इटसेल्फ. तो देयर यू नो कि यार अगर किसी बंदे ने मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे दिया है, देन आई हैव द राइट टू गो इनटू देयर इनबॉक्स एंड बी लाइक कि एंड टेल देम कि यू नो यू चेक दिस आउट, ये मैंने अच्छी चीज बनाई है, आपको अच्छी लगेगी. और वो अगर आपको एड्रेस भी दे रहे हैं अपना, तो इसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड है आपकी चीज में. हाँ, ट्रस्ट कर रहा है, एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेंट है. हाँ, तो फिर वंस यू हैव एन ईमेल लिस्ट एंड वो आपने ग्रो कर ली, तो देन दैट मीन्स यू हैव अ क्वालिफाइड लिस्ट ऑफ पीपल कि यार जो तुम्हारी चीज़ में इंटरेस्टेड है. अब उसके बाद हाउ डू आई मेक
make them convert. हाँ तो वो क्या जर्नी होती? So you need to figure out कि क्या पेन पॉइंट है उनका और ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए they would be willing to pay money for. यार ये तो अच्छा है बट मैं आगे से मैं इनमें से किस चीज़ के लिए मैं पैसे दे सकता हूँ. तो अलग डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट. सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए अलग होता है, कंटेंट प्रोडक्ट के लिए अलग होता है. कई लोग जैसे आई रिमेंबर लाइक आई मेड अ लॉट ऑफ कोर्सेज एंड बुक्स इन द इनिशियल डेज. मैं जो भी सीख रहा था मैं उसको डॉक्यूमेंट कर रहा था, मैं उनके वीडियो कोर्सेज बना रहा था मैं, और बुक्स लिख रहा था, ई बुक्स लिख रहा था कि ये चीज़ें. फॉर वेरी एग्जाम्पल, one of my most viral products was Copy OS, right before ChatGPT, before AI came in, right? I made like a Notion system of writing good quality copy for your landing pages, for your emails, for anything, and that really went viral on Twitter and people really loved it, and it made decent chunk of money. But I figured out कि हाँ यार ये this is a problem that people have कि copywriting में उनको help चाहिए, right? तो so that is where like your ideas for but you need to know what your audience finds painful. तो मेरा जैसा audience था उनके लिए that was the product, right? कोई और किसी और का कुछ और audience है तो like for you, right, maybe like AI automations is a good product कि मैं AI automations का एक content या एक course बना देता हूँ कि how can any business owner or any agency owner can automate 50% 80% of their work with AI. राइट कि कोई भी मार्केटिंग एजेंसी अगर चला रहा है तो वो कैसे अपना काम को अगेन सेविंग मनी, मेकिंग मनी, सेविंग टाइम, राइट, ये तीन चीज पे विल कम बैक. हेल्प करना है हमेशा, किसी को इन तीनों में हेल्प करो, you will get money. You will make money. Like there is no other way. So that is how you do audience research, you do customer interviews, you just talk to people on DMs or on Zoom calls. I've done hundreds of Zoom calls from people around the world. So what do you do in them? Like you ask them कि अच्छा इसमें क्या गलत था, what करना है? You initially you just have casual conversations just to build a relationship, right? कि हाँ यार कि let's get to know you are also doing this, I am also doing this, right? And then smart entrepreneurs would actually get on calls with random people who they think are smart, right? So that's why again having a presence, having an account, like अगर आपका ऐसे डीपी में कोई और डिस्प्ले पिक्चर में किसी और की फोटो लगी हुई है और आपके 4 फॉलोअर हैं, राइट, और आप बस गालियां भर रहे हो वहाँ पे ट्विटर पे जाके, आप एयरटेल को गाली दे रहे हो, डोमिनोज को गाली दे रहे हो, तो आपको कोई नहीं बात करना चाहता आपसे. सही बात है. तो कोई फायदा नहीं है. तो थोड़ा प्रोफेशनल बनो, थोड़ा एक डिसेंसी, एक डिग्निटी मेंटेन करो अपने प्लेटफॉर्म की, जहाँ और थोड़ा कंसिस्टेंटली पोस्ट करो, देन पीपल विल टेक यू सीरियसली. एंड देन व्हेन यू आस्क देम फॉर अ Zoom call, like they'll get on a call with you and they'll talk to you about their problems, and you'll talk to them about your problems, right? And then that's how you network, basically in an always connected internet world. That is essentially networking is a very looked down upon word. I hate it myself, right? But just be honest, be natural, be genuine with people, and get to know interesting people, right? I think that's where you will get a lot of insights. A lot of insights comes from like casual candid conversations like this, right? But people won't have candid conversations with you unless they feel safe, unless they feel that you are honest and you're genuine. और उनका बात करने का मन भी करना चाहिए तुमसे. Why would anyone get on a call with you अगर आपने कुछ किया ही नहीं है? तो कुछ तो इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा, राइट? सही बात है. तो कुछ तो इंटरेस्टिंग करो और उसके बारे में लिखो या बोलो, और शेयर करो और लोगों के साथ रीच आउट करो. और फिर मैं वही बता रहा हूँ कि मतलब पूरे दुनिया में इतने बढ़िया लोग हैं जो आपके दिमाग के हिसाब से ही बने हुए हैं, आपको बस उन्हें ढूंढना है. तो बस अपनी वो प्रोबेबिलिटी हाई कर दोगे तो अपने पास सब कुछ. मेरी पॉडकास्ट के हर गेस्ट ऐसे ही हैं. आई जस्ट रीच्ड आउट टू देम कि आई लाइक यू, please come, I would love to have a conversation, nothing else, and they're like okay sure. बिल्कुल. That's what, like smart people are interested in having smart conversations, right? ऐसे डरने की बात नहीं. Like बड़े लोग, like I've reached out to people with like millions of followers, and then I've had them on calls and asked them in good like deep questions, and they've been obliged. And when I was a nobody, when I had no like real audience to per se, I only had like a presence कि हाँ यार मैं ये चीज़ कर रहा हूँ और इसके बारे में लिखता हूँ. Just on that, people like कि हाँ जो लिख रहा है इंटरेस्टिंग है, स्मार्ट बंदा लग रहा है, बात करते हैं, क्या बुराई है? That is brilliant. And towards the end of this conversation, there is one topic that I really wanted to touch on. One thing that you do that I feel is really smart is how you structure, like the way you have structured, you build a team on a product. So basically
यू हैव गॉन थ्रू द एंटायर प्लेबुक. आपने ऑडियंस ढूंढी, वैलिडेट करा, उसमें कोड या मीडिया का प्रोडक्ट बनाया, उसमें अगर एक बढ़िया सा ट्रैक्शन आ गया कि लोग आ रहे हैं, मुझे पैसा रेगुलरली मिल रहा है, अब इसे स्केल करने की बारी है. देन उसके बाद की जर्नी आप बताओ, आपने क्या करा LFS के साथ? So LFS was a different audience actually. That is not my Twitter audience. That's a very different product. It's an AI assistant, knowledge assistant for people who use Mac a lot. Yes. Right, Mac computer, Mac local app है, बहुत ही niche, बहुत छोटा market है, but उस market में हम थोड़े popular हैं. Right, so over time, so we started a 2% team, right? As I said, I found met my co-founder on Twitter, and we started working on it, and we started getting traction. After a point, we realized कि हाँ यार ये grow हो रहा है, but इससे ज़्यादा करने के लिए हमको लोग चाहिएंगे. So we should hire people. Actually, I learned that from him. Like he was big into building a team and then hiring people, right? So this is what happens when you partner up with interesting people, right? You learn a lot from their experience also. Yeah. So and I realized, yeah, I was like नहीं hire नहीं करते, right? Like बहुत वो scarcity mindset एक होता है ना कि यार hire कैसे करोगे, पैसे लग जाएंगे, पैसे कहाँ से जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर मैनेज करना पड़ेगा. And he was like कि नहीं ठीक है, हम ज़्यादातर पैसा अभी जो आ रहा है, like this is 2-3 years ago, वो हम हायरिंग में लगाते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, राइट, और उनसे काम करवाते हैं, और हम स्ट्रेटेजिक सोच सकते हैं. तो सो दैट वी आर बिजनेस पार्टनर्स. हमको बिजनेस का लॉन्ग टर्म सोचना है. हम अगर डेली एग्जीक्यूशन में पड़ गए तो हम बिजनेस कैसे ग्रो करेंगे? तो फिर आपने ये सोचा कि, एंड दैट वाज एन इनसाइट जो कि उनसे है कि भैया हम क्या करते हैं, हम लोगों को ट्रेन करते हैं ताकि हमारे डेली जो चीज़ें हमें करनी है, कि भाई कोड के बग्स फिक्स करने हैं, लैंडिंग पेज बनाना है, इसका टेक्स्ट सही करना है, फॉन्ट सही करना है, ब्लॉग बनाना है, हम लोगों को लाते हैं, ट्रेन करते हैं, वो करते रहेंगे. और हम लोग ताकि इसको स्ट्रैटेजिकली कहाँ पे ग्रो करें, नई मार्केट ढूंढे, नया पिवट ढूंढे, वैसे. यस, कस्टमर कॉल्स हम लोग आज भी कस्टमर कॉल करते हैं. कस्टमर कॉल हम ही करते हैं, फाउंडर ही करते हैं. मैं या वो, हम दोनों में, हम नहीं, दो लोग करते हैं, जिससे हमको इनसाइट, कस्टमर की इनसाइट मिलती है कि जो बंदा हमको पैसे दे रहा है, महीने के महीने इतने सारे पैसे दे रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है, वो क्या चाहता है, वो और क्या चाहता है हमसे. राइट, बी एज क्लोज टू द कस्टमर एज पॉसिबल, आई वुड से, है ना. तो सो वी डू अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड कस्टमर रिक्वेस्ट. आवर टीम, of course we have people for support, we have hired for support, and we have hired for marketing, we have hired for development, right. So now our job is to is to train them well, like to coach the team well to do their job best, to understand the customer, to understand the market, to understand the competition, and then decide what are the next big high leverage activities we can do in the business. Right, I think a lot of, again coming back to leverage, a lot of people end up doing very low leverage work. Right, the moment you realize कि यार ये ना 1 घंटा में ये X काम कर सकता हूँ, Y काम कर सकता हूँ, राइट, और X काम करने से ना मुझे 100X रिटर्न मिलेगा, Y काम करने से मुझे 1Y 2Y रिटर्न मिलेगा, तो आप वो 1Y वाला आउटसोर्स करोगे ना यार किसी और को. आप खुद क्यों करोगे? आप X वाला काम करोगे जो आपको 100X ला के देगा. तो लोग उतना नहीं समझ पाते, वो एक स्कैर्सिटी माइंडसेट में फंस जाते हैं कि यार मैं पैसे बचा लेता हूँ, ये तो मैं ही कर लूंगा, किसी और से क्या करवाना है ना, छोटा सा काम है, 1 ही घंटा तो है. नहीं, हर घंटा इंपॉर्टेंट है. हर घंटा आप कैसे स्पेंड कर रहे हो, उसका लार्जर इम्पैक्ट क्या है, वो दैट इज वे मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग. एंड तो एज अ फाउंडर अगर आपको स्केल करना है, तो फिर दैट इज समथिंग यू शुड बी वेरी कॉन्शियस ऑफ कि क्या जो मैं भी काम कर रहा हूँ वो वैसे क्या विल इट गिव मी दोज रिटर्न्स, क्या मुझे आउटसाइड रिटर्न दे रहा है. बिकॉज वन थिंग ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा था, जस्ट बिकॉज आई फिगर्ड आउट कि ये सोचता कैसे है. इलॉन मस्क ने बोला था कि मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करता हूँ कि एवरी 5 minutes आई स्पेंड थिंकिंग अबाउट टेस्ला लीड्स टू $10 million इन रेवेन्यू. तो उसने ऐसे करके सोचा है कि ये लेवरेज, मतलब वो ब्रेन साइकिल्स को लेवरेज कर रहा है. मैं कितनी साइकिल लगाता हूँ एक चीज में, हाँ, कितनी बार मेरा ब्रेन घूम रहा है, उस साइकिल का आउटपुट क्या है. और वो अभी भी अपने आप को वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी होते, वो भी बार बार कॉन्स्टेंटली सर्कलिंग बैक टू दैट. yes and that is, I think every day, every morning when you wake up, everyone should ask themselves, what is the highest leverage activity I can do today. मैं आज क्या ऐसा काम कर दूं कि मेरे को 1 का 10 मिल जाए रिटर्न उस पर. इट्स ओके कि ना मिले, लेकिन अगर आप 10 ऐसे करोगे तो 10 में से आपको 100 बन जाएंगे, 10 में से आपके 1000 बन जाएंगे, कोई एक काम ऐसा होगा. तो या पीपल रियली नीड टू थिंक डीपली अबाउट लेवरेज. To bookmark the end of this beautiful conversation, I just want to have a rapid fire round with you. So let's just start. One book that changed your life. Psychology of Money. By Morgan Housel? By Morgan Housel, yes. Acha. What's the biggest business mistake you see people making?
people not thinking from a growth mindset, people thinking from a closed mindset and shortchanging themselves, not having the confidence कि यार हो जाएगा, है ना, मैं अभी क्यों मैं खराब काम करूँ या कम काम करूँ या सस्ता काम करूँ. You can charge more once you have the skill, have the confidence, come with a growth mindset कि in the long term, the long arc, things will work out. अच्छा, what's an underrated skill? Human psychology, understanding how humans think, how our brains work. Yeah, I think most people जो science और commerce हमारे यहाँ लेते हैं और फिर tech engineering jobs कर लेते हैं, they don't understand the most important skill is कि इंसान कैसे काम करता है. Like तुम मशीन को तो काम करवा लोगे, बट इंसान कैसे चलता है, क्यों चलता है, लोग किस चीज़ पे लोगों के बटन्स पुश होते हैं. और आप देखो जो भी आज टॉप एप्स हैं दुनिया की, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, दे अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजिकल बटन्स एंड दे पुश दोज बटन्स टू कीप यू यूजिंग दोज एप्स, राइट. तो अगर if you want to build a solid business, then you need to understand human psychology. What is your unpopular opinion about entrepreneurship? That unpopular opinion about entrepreneurship is that it gives you happiness or peace or contentment. अगर आप already खुश happy इंसान नहीं हो, तो बिजनेस करके आप खुश और हैप्पी इंसान नहीं बनोगे. आप पैसे कमा लोगे, आपके लाइफ में लेवरेज भी हो सकता है, बट अगर इफ योर पर्सनल लाइफ इज शिट, राइट, इफ यू डोंट हैव लाइक थिंग्स दैट यू कैन नॉट बाय, राइट, हैप्पी फैमिली, अ हाउस फुल ऑफ लव एंड अ फिट बॉडी, राइट, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट. तो वो बिजनेस करके भी नहीं आएंगी. यू कैन बी द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बट यू कैन हैव अ स्क्रूड अप पर्सनल लाइफ, लाइक मिस्टर मस्क. Yes. Perfect example there. The last question that I have for you is, what's one person you would love to have dinner with? Oh, from history. Oh, from history. जो भी. अच्छा. Yeah, I have so many. I would probably. Yeah, this is very hard. This is very very hard. Very very hard. दो कर लो. हाँ नहीं दो कर लेते हैं, 2-3 कर लेते हैं. तो मुझे एक तो I'd probably go back and meet Leonardo da Vinci, right. I think वो multidisciplinary skill और knowledge उस बंदे की थी. I think it is crazy, right. तो very 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 powerful person. And probably someone from living, I would say probably like to meet Naval Ravikant, right. I think he has like his ideas on leverage are what have impacted me the most. So yeah, I would like to meet him as well. Chalo, that's great. And on that beautiful note, it was great having this conversation with you. I really learned a lot. As I keep on learning from you. कभी भी परेशान हो तो मैं इन्हीं को कॉल करता हूँ कि माई बचाई ले, प्रॉब्लम हो गई ऐसे करके. But yeah, it was amazing. It is so fun to be here and to have this conversation with you, Ashutosh. I've always been a great fan of your work and your effort and your kind heart. Thank you so much for having me.